Dear students of BSc first year, first semester of chemistry, I myself, Dr. Dilip Shukla, discussed you about the chapter stereochemistry, in which we discuss about the concept of isomerism, types of isomerism, what is isomerism. First of all, we should study the type of isomerism, in which two types of isomerism. First is structural isomerism and second is stereoisomerism. अब हम सेकंड को डाल देते हैं बी को, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने आपको बताया था कि स्टीरियो मीन्स होता है 3 डायमेंशन, आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स मॉलिक्यूल, इज्म मीन्स कंसेप्ट। तो जो हमने कहा था कि आइसोमेरिज्म मीन्स फार्मूला सेम बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, and different properties are due to different arrangement of atoms and molecules without 3-dimensional space, that is structural. Stereo में within 3-dimensional space, so you should write what is stereoisomerism. लिखिए compounds having different 3-dimensional relative arrangement, 3-dimensional relative arrangement of atoms in space, are called stereoisomers. This phenomenon is called stereoisomerism. These compounds are said to have different configurations. Stereoisomerism is of the following kinds. में आप डाल दीजिए नंबर ए symmetrical isomerism, बी पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सी है कन्फॉर्मेशनल isomerism. These are 3 kinds of stereoisomerism: symmetrical isomerism, optical isomerism, and conformational isomerism. First of all, we should study about the geometrical isomerism. What is the geometrical isomerism? तो हमको सबसे पहले geometrical isomerism को पढ़ना होगा. यह isomerism arises due to restriction of rotation of double bond. Restrictions of rotation of double bonds क्यों होता है, इसको हमको आपको पढ़ना पड़ता है कि restrictions of rotation डबल बॉन्ड का हम कैसे करेंगे. तो आप पहले डाल दीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. लिखिए 2 carbon atoms joined by a single bonds are example of free rotation around each other, but this rotation is hindered in case of compounds containing carbon-carbon double bond, double bonds. According to
molecular orbital theory, carbon atoms involved in double bond formation are sp2 hybridized, so that each carbon atom has three planar sp2 hybridized orbitals and fourth p orbitals having its slope at right angles to the plane of sp2 orbitals. The formation of pi bond involves the overlapping of p orbitals with the formation of a pi bond between carbon-carbon atom along with a sigma bond, which is already existing. There remains no longer possibility of rotation along carbon-carbon axis. Neither of two doubly bonded carbon atoms can be rotated about double bond without destroying pi orbitals, which requires large amount of energy. Thus, at ordinary temperature, the rotation about carbon-carbon double bond is restricted or hindered and gives rise to a kind of stereoisomerism known as symmetrical isomerism. अब आपको हम समझाना चाहते हैं कि जैसे कार्बन और कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो रोटेशन फ्री हो जाएगा, लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड है तो एक तरफ हाफ रोटेशन होगा, फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए। तो ये रिस्ट्रिक्शंस ऑफ रोटेशन किसके द्वारा हो गया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए पाई बॉन्ड कुछ रिस्ट्रिक्ट दी फ्री रोटेशन, जबकि सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन चारों तरफ हो जाएगा और इसमें नहीं होगा। अब इसी के आधार पर एक ही कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होंगे और स्ट्रक्चरल डिफरेंस के वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंसेस आएंगे। आगे लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। This type of isomerism takes place in compounds containing carbon-carbon double bond C, in which each of the two doubly bonded carbon atoms is attached to two different atoms or groups. Full stop. All the compounds
with general formula of the type, with general formula of the type CAB double bond CAB, CAB double bond CAB, so symmetrical isomerism, so symmetrical isomerism। अब हम सिस और ट्रांस को जान लें। अगर दोनों ग्रुप सेम साइड में हैं, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, कहलाएगा सिस आइसोमेरिज्म। सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, ट्रांस आइसोमेरिज्म। लिखिए, इफ आइदर ऑफ द टू कार्बन एटम्स, इफ आइदर ऑफ टू कार्बन एटम्स carries two identical groups, two identical groups, as in CAB oblique CAA or CAB double bond CDD, carries two identical groups, the isomerism does not exist. The isomerism does not exist. This isomerism is due to difference in the relative spatial arrangement of the atoms or groups about the doubly bonded carbon atoms, doubly bonded carbon atoms। अब आपको इस तरीके से मैं बता सकता हूं कि ये आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ये आइसोमेरिज्म अगर हमको देखना है तो ये हम दिखा सकते हैं कि ये C है, ये है, ये। अगर A ग्रुप सेम पर है, B सेम पर है, तो यही कहलाएगा सिस फॉर्म। एक तरफ किसी को रोटेट करा दीजिए, मान लीजिए इसी को हमने रोटेट करा दिया। रोटेट कराने पर ये जो है B इधर हो गया, A इधर आ गया, तो A था, ये B था, अब अपोजिट फॉर्म में है, तो हो गया ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब हमको ये जानना है कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशंस, कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। तो नोट करिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल isomerism। What is the necessary conditions? अब आप नोट करिए, for a compound to show symmetrical isomerism, for a compound to show symmetrical isomerism, the following conditions are necessary. Following conditions are necessary। इसमें आप नंबर फर्स्ट, दोनों शर्तें आपको बता दूं। पहला, कार्बन कार्बन डबली बॉन्ड हो, फिर हर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप या एटम जुड़े हों। यही दो कंडीशंस है, इसको नोट करिए। द मॉलिक्यूल्स मस्ट कंटेन, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अबाउट व्हिच देयर इज नो फ्री रोटेशन, no free rotation। Second, each of the doubly bonded carbon atom must be attached to two different atoms or groups,
ये दो नेसेसरी कंडीशंस। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इन केस ऑफ ए कंपाउंड, इन केस ऑफ ए कंपाउंड विथ फार्मूला ऑफ द टाइप, विथ फार्मूला ऑफ द टाइप CAB डबल बॉन्ड CAB, CAB डबल बॉन्ड CAB फुल स्टॉप। If two similar groups are, if two similar groups are on the same side of double bond, on the same side of double bond, the isomer is known as cis. And if two similar groups are on the opposite sides of double bond, the isomer is known as, the isomer is known as trans isomer, the isomer is known as trans isomer। अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दोनों कंडीशंस हमको आपको पता चल गया है और इन दोनों कंडीशंस को हमको देखना है कि हम कैसे इसकी सिमिलरिटीज कराते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि ये दो कंडीशंस जो बनेंगी तो ये कंडीशंस होगी C A A, ये है A, ये है B, ये है A, ये है B, ये है cis पार। और दूसरा जो हमने आपको बताया, एक तरफ अगर A B और दूसरी तरफ आपका B और ये हो जाएगा A, किसी तरीके से रोटेशन आप करा दीजिए तो ये कहलाता है ट्रांसफार्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का। अब हमारी दूसरी कंडीशन है, हमने पहले कहा है कि ये कार्बन कार्बन का, ये देखिए ये अगर कार्बन कार्बन ही है और यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि एक तरफ H हो, एक तरफ H हो, एक तरफ H है, यानी एथिलीन ये आपको नहीं दिखाएगा, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो पाएगा। अगर हमने एक कंडीशन कर दिया कि एक तरफ CH3 कर दिया, यानी अब देखिए ये हो गया प्रोपीन, एथिलीन से हो गया प्रोपीन, ये भी नहीं दिखाएगा। अब हम अगर इधर भी कर दें तो ये हो गया ब्यूटीन, आपका जो फार्मूला है ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड, यह है ब्यूटीन 2। इस ब्यूटीन 2 में दोनों तरीके का आपने कह दिया सिस ब्यूट 2 हम किसी एक तरफ को रोटेट करा दिए, इसी को रोटेट करा दिया तो ये हो गया C डबल बॉन्ड, इधर हो गया आपका H, इधर हो गया CH3, ये आपका CM सेम है। अब यही कहलाएगा ट्रांस ब्यूट 2 सिस ब्यूटीन ट्रांस ब्यूटीन। इसके अलावा आपके पास दूसरा उदाहरण है मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का। मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में आप देखिए C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H COH H COH, इधर आपने कर दिया H COOH, इधर आपका हो गया HOC और C। यह आपका है सिस फार्म। कौन सा है? सिस फार्म। ये कौन सा हो गया? ट्रांसफार्म।
इसको हम कहते हैं मैलेइक एसिड और ये कहलाता है फ्यूमेरिक एसिड। इसको जब कभी भी आपको लगाना होगा तो आप लगाते हो HOOC CH डबल बॉन्ड CH COOH। किसी भी तरीके से ले लीजिए 1 2 3 4। आपका आएगा ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड ब्यूटीन 2,1,4 डाइओइक एसिड या 1,4 ब्यूटीन डाइओइक एसिड। ये भी हम कर सकते हैं कि हम कर दें 1,4 ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड। अब मैलेइक और फ्यूमेरिक ये जो दो फॉर्म आपके तैयार हुए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एक बहुत अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। इनके आधार पर हम लोग कई फॉर्म को रिपीट करा सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब आप डाल दीजिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं OR डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस आइसोमर के बीच में हम विभेद कैसे करेंगे, तो आपकी लिखिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल फॉर determination of configuration of a symmetrical isomers are discussed as। पहला आप डाल दीजिए फ्रॉम डाइपोल मोमेंट्स। आपको मैं बता दूं, ट्रांस में अपोजिट होने के नाते कट जाएगा और वैल्यू आएगी डाइपोल मोमेंट की 0। तो हम सीधे कह सकते हैं कि जिसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो वो ट्रांसफॉर्म होगा, और जिसकी कुछ डाइपोल मोमेंट वैल्यू हो वो सिस फॉर्म होगा। जनरली सिस आइसोमर्स हैज greater dipole moment as compared to trans isomers in case of cis isomer, the similar groups being on same side, the electronic effects are additive, while in case of trans isomer the similar groups being on opposite sides, the electronic effects cancel each other। फॉर एग्जाम्पल जो हमने आपको बताया था HCH3 डबल बॉन्ड HCH3, ये सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट है 0.4d
जैसा हम पहले भी आपको 0.4D को बता चुके हैं कि ये डिबाई है। ठीक इसी तरीके से HCCH3 डबल बॉन्ड H3C और H, अब जो भी होगा इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से एक और हम बदल के दिखा देते हैं, डबल बॉन्ड HCl, म्यू है 1.84D और ठीक इसी का ट्रांसफार इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0 का, इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें विभेद करके देख सकते हैं कि सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म किस तरह से बदल सकता है। आप दूसरा पॉइंट डालिए, फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट्स, फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सेकंड डालिएगा। सेकंड है फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट्स। चलिए लिखिए, जनरली सिस आइसोमर्स हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, जनरली सिस आइसोमर्स हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट than trans isomer. This is because of higher dipole moment and higher polarity in the molecule, higher polarity in the molecules, which acts as the binding force and is responsible for higher boiling point of the cis isomer. Boiling point of cis 2-butene is 277 Kelvin, while the trans 2-butene boils at 274 Kelvin, 274 Kelvin. BP 277 K, H CH3 H3C H, boiling point 274 K। फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट से हमने विभेद कर दिया कि सिस की बॉइलिंग पॉइंट अधिक होती है, ट्रांस की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट्स, नोट करिए, ए सिस आइसोमर हैज ए, ठीक उल्टा, a cis isomer has a lower melting point compared to trans isomer. Here the factor that is important is the size of molecules. It can be realized that a cis isomer will occupy a
smaller volume compared to the trans isomer as shown by dotted lines. Thus, maleic acid melts at 403 Kelvin. 403 Kelvin, whereas fumaric acid melts at 575 Kelvin. आप यहाँ बीपी की जगह मेल्टिंग पॉइंट कर दीजिए। ये मेल्टिंग पॉइंट ये है 403 केल्विन और इसकी है 575 केल्विन फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट से। नेक्स्ट, फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट लिख डालिए, फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के द्वारा इसको हम दिखाते हैं। देखिए, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म can be distinguished through reaction that leads to formation of ring. Cis isomer undergo ring closure more readily than trans isomer. For example, maleic acid loses water readily when heated to about 423 Kelvin, 423 Kelvin, to give an anhydride. While fumaric acid does not give anhydride, at this temperature. Rather, it must be heated to 573 Kelvin to get the same anhydride. Hydrolysis of anhydrides yields only maleic acids. अब आप देखिए इसको ध्यान से। हमने आपको स्ट्रक्चर बना के दिया था HCCOOH डबल बॉन्ड HCOOH। आपने इसको हीट किया कितने पर? 423 केल्विन पर। इससे आप देखिएगा ध्यान से, ये हमने ले लिया यहाँ से
एक वाटर निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां बचा H C डबल बॉन्ड H, यहाँ है O, यहाँ भी है O, और एक O जो बचा था, एक O, इसको समझो। अब यहां हमारे क्या बन गया, एनहाइड्राइड। ये जो आपने देखा था, ये एक एनहाइड्राइड हम लोगों ने तैयार कर दिया। कौन सा एनहाइड्राइड है, हम कह सकते हैं ये है मैलिक एनहाइड्राइड। लेकिन सेम इसकी प्रक्रिया दूसरी तरफ देखिए कि यही सेम था H और आपका COH, डबल बॉन्ड HOOC और H। ये आपका फ्यूमेरिक एसिड है, ये है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड को जब आप 573 केल्विन पर गर्म करते हो, 573 केल्विन पर करोगे, तब आपको मैलिक एनहाइड्राइड मिलेगा। और इस एनहाइड्राइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, यानी वाटर जोड़ोगे, तो सिर्फ आपको मिलेगा मैलिक एसिड ओनली। सिर्फ आपको मैलिक एसिड मिलेगा। इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कुछ पॉइंट्स को इरेज करके हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू restrictions of rotation, and restriction of rotation is due to presence of a pi bonds, and necessary conditions क्या है कि दोनों कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, एंड ईच कार्बन शुड कंटेन डिफरेंट ग्रुप या एटम। अगर सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है सिस फॉर्म, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे है तो ट्रांसफॉर्म। इनको हम विभेद कैसे कर पाएंगे, अगर डाइपोल मोमेंट 0 आता है तो हम कह देंगे ट्रांस आइसोमर है, डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू है सिस फॉर्म है। ठीक इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट जिसकी अधिक होगी वो सिस फॉर्म होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम वाला ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक उल्टा, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी वो सिस फॉर्म में, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट अधिक वो ट्रांसफॉर्म में। तीसरा एक उदाहरण आपको बताया कि साइक्लिक फॉर्मेशन। जब कभी भी मैलिक एसिड को हीट करेंगे तो वाटर लूज करके आसानी से और साइक्लिक फॉर्म में मैलिक एनहाइड्राइड बनाएगा 423 केल्विन पर, जबकि फ्यूमेरिक एसिड इस ताप पर नहीं करेगा। 573 पर आप हीट करिए तो फ्यूमेरिक एसिड भी मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करने पर हमको सिर्फ और सिर्फ मैलिक एसिड मिलता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। उम्मीद है कि ये चैप्टर भी आपको समझ में आएगा। अगले समय मिलते ही मैं दूसरे चैप्टर को भी, जो इसके शेष भाग हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल एनालिसिस, EZ एंड RS नोटेशन, उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।